નમસ્તે બાળમિત્રો, આપણે ધોરણ 7માં વિજ્ઞાન વિષયના એકમ 3 રેસાથી કાપડ સુધીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, ખરું ને? તો ચાલો આપણે શું શું શીખ્યા તે થોડું યાદ કરી લઈએ. પ્રાણીઓમાંથી જે રેસા મળશે તેને શું કહીશું? હા, સરસ, પ્રાણીજન્ય રેસા. આપણે પ્રાણીજન્ય રેસા મેળવવા માટે પ્રાણીના કયા ભાગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? પ્રાણીઓની રૂંવાટી એટલે કે પ્રાણીઓના વાળ, ખરું ને? પેશમીના શાલ મેળવવા માટે આપણે કયા પ્રાણીની રૂંવાટીનો ઉપયોગ કરીશું? સરસ, કાશ્મીરી બકરીઓ. પસંદગીલક્ષી સંવર્ધન એટલે શું? પાતળા અને સુંવાળા વાળ મેળવવા માટે આવી રીતે કરવામાં આવતી પિતૃઓની પસંદગીને આપણે પસંદગીલક્ષી સંવર્ધન કહીશું. ઘેટાઓનું પાલન અને સંવર્ધન શા માટે કરવામાં આવે છે? ઘેટાઓનું પાલન અને સંવર્ધન મોટા પ્રમાણમાં ઘેટાઓની રૂંવાટી મેળવવા માટે એટલે કે મોટા પાયે ઊનનું ઉત્પાદન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. કથ્થઈ રંગનું ઊન મેળવવા માટે ઘેટાની કઈ જાતિનો ઉપયોગ થાય છે? સરસ, કથ્થઈ રંગનું ઊન મેળવવા માટે રામપુર બુશાયર કે જે હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં જોવા મળતી ઘેટાઓની જાતિ છે. ગુજરાતમાં કઈ કઈ જાતિના ઘેટા જોવા મળે છે? હા, ગુજરાતમાં પાઠનવાળી અને મારવાડી ઘેટા જોવા મળે છે. તો ચાલો બાળમિત્રો, આપણે પ્રાણીજન્ય રેસા ઊન તો સમજ્યા. હવે આપણે પ્રાણીજન્ય રેસા તરીકે રેશમ સમજીએ. હા, રેશમ એટલે સિલ્ક, ખરું કીધું. રેશમ એ રેશમના કીડામાંથી મેળવવામાં આવતો પ્રાણીજન્ય રેસો છે. માદા પતંગિયું શેતુરના પાન પર ઈંડા મૂકશે. ઈંડા મૂક્યા બાદ થોડા સમય પછી તેમાંથી કેટરપિલર એટલે કે રેશમનું ડીંબ, રેશમનો કીડો બહાર આવે છે, જેને કેટરપિલર પણ કહીએ છીએ. આ રેશમનો કીડો જ્યારે ખૂબ નાનો હશે ત્યારે કુમળા શેતુરના પાન અને ડાળીઓ ખાશે અને ત્યારબાદ તે પોતાની જાતને એક કોષિત અવસ્થામાં લાવે છે. એટલે કે રેશમનો કીડો અંગ્રેજી આંઠડાના સ્વરૂપે પોતાના માથાને પોતાના શરીરની આસપાસ ફેરવે છે અને પાતળા પ્રોટીનના બનેલા તંતુઓનો સ્ત્રાવ કરે છે. આ પ્રોટીનના તંતુઓ જેવા હવાના સંપર્કમાં આવશે કે રેશમના તારમાં ફેરવાઈ જશે. આવી રીતે રેશમનો કીડો પોતાની જાતને કોશેટો તરીકે ઓળખાતા રેશમના જાળામાં પૂરી દે છે અને તેને આપણે કહીશું પ્યુપા. આ પ્યુપા કોશિત અવસ્થા કોશેટોમાં જ વિકાસ પામતી રહે છે અને કોશેટો તોડીને રેશમનું પતંગિયું બહાર નીકળશે. હવે આ રેશમનું પતંગિયું નર અને માદા પતંગિયાના સંવનનથી ફરીથી શેતુરના પાન પર ઈંડા મૂકશે અને ફરીથી રેશમનો કીડો ઉત્પન્ન થશે. રેશમનો કીડો પોતાની જાતને કોશેટોમાં પ્યુપા અવસ્થામાં લાવશે. આ પ્યુપા કોશેટોમાં વિકાસ પામીને ફરીથી પતંગિયું કોશેટોમાંથી બહાર નીકળશે. આવી રીતે રેશમના કીડાનું જીવનચક્ર ચાલતું રહે છે. તો ચાલો બાળમિત્રો, આપણે રેશમના કીડાના જીવનચક્રનો એક નાનકડો વિડીયો જોઈ લઈએ.
જોયું ને બાળ મિત્રો, આપણે રેશમના કીડાના જીવનચક્રનો એક વિડીયો તો જોયો, પણ ચલો તમને કેટલું યાદ રહ્યું તે જોઈ લઈએ. બાળ મિત્રો, અહીં મારા પાસે કેટલાક કાર્ડ છે. આ કાર્ડમાં રેશમના કીડાના જીવનચક્રના અલગ અલગ તબક્કાઓ છે. તો તમારે મને એ તબક્કાઓને ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવામાં મદદ કરવાની છે. કરશો ને? તો ચલો, પહેલું કાર્ડ કયું રાખીશ? યાદ કરો, જીવનચક્રની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? સરસ. પહેલાં નર અને માદા પતંગિયાનું સંવનન થશે. ત્યાર પછી શું જોવા મળશે? સરસ. ત્યાર પછી શેતુરના પાન પર ઈંડા જોવા મળશે. હવે આ ઈંડા છે તેમાંથી વિકાસ પામીને આગલી કઈ અવસ્થા આવશે? વેરી ગુડ, રેશમનો કીડો. રેશમના કીડામાંથી શું બનશે? સરસ. રેશમનો કીડો પોતાની જાત ફરતે અંગ્રેજી આંઠડાના સ્વરૂપે કોશેટો બનાવશે અને ત્યારબાદ કોશેટોમાં વિકાસ પામતો પ્યુપા. આ જે અંદર દેખાય છે એ છે પ્યુપા. હવે પ્યુપા કોશેટોમાં વિકસિત થઈને શું બનશે? હા, પતંગિયું. એ માદા પતંગિયું હોઈ શકે અથવા તો નર પતંગિયું હોઈ શકે. ખરું ને? તો આવી રીતે રેશમના કીડાનું જીવનચક્ર ચાલતું રહેશે. બાળ મિત્રો, જેમ મધમાખી ઉછેર કરવો તેને આપણે શું કહીએ છીએ? એપીકલ્ચર. તેવી રીતે રેશમના કીડાનો ઉછેર કરવાનો ઉદ્યોગ ચાલતો હોય છે અને આ રેશમના કીડાના ઉછેર કરવાની પ્રક્રિયાને કહેવાય છે સેરીકલ્ચર. ભારતમાં ઘણા બધા ગૃહ ઉદ્યોગો સ્ત્રીઓ દ્વારા ચાલતા હોય છે અને તે પૈકીનો એક ઉદ્યોગ છે રેશમના કીડા ઉછેરવાનો ઉદ્યોગ, એટલે કે સેરીકલ્ચર. ભારતમાં બનતું રેશમ દેશ વિદેશમાં વેચાતું હોય છે અને આવી રીતે ભારતના આર્થિક ઘડતરમાં સ્ત્રીઓનું ખૂબ મોટું યોગદાન રહેલું છે. ભારત રેશમના ઉત્પાદનમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે અને ચીન રેશમના ઉત્પાદનમાં અવ્વલ નંબરે છે. બાળમિત્રો, શું તમે જાણો છો કે રેશમ પણ અનેક પ્રકારે જોવા મળતું હોય છે? મોટા ભાગે મલબેરી પ્રકારનું રેશમ જોવા મળે છે. મલબેરી પ્રકારના રેશમના કીડાનો ઉછેર કરવાથી જે રેશમ મળે છે તે મુલાયમ, ચમકદાર અને લચીલાપણું ધરાવતું હોય છે અને આથી જ મલબેરી રેશમના કીડાઓને વધારે સંખ્યામાં ઉછેરવામાં આવતા હોય છે. તો આપણે મલબેરી રેશમના કીડાને જોવા છે? ચાલો જોઈ લઈએ. આ ઉપરાંત ટસર સિલ્ક, કોસા સિલ્ક, મુગા સિલ્ક અને એરી સિલ્ક પણ જોવા મળે છે. ટસર સિલ્ક એટલે કે ટસર રેશમના કીડાને જોઈએ. જોયું ને બાળ મિત્રો, આપણે મલબેરી, ટસર રેશમના કીડાઓને જોયા. દેખાવમાં અલગ અલગ છે. તો ચલો મુગા રેશમના કીડાને પણ જોઈ લઈએ. જોયું ને બાળ મિત્રો, આવી રીતે બધા જ રેશમના કીડા
દેખાવે અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે અને તેમાંથી મળતું રેશમ પણ અલગ અલગ પ્રકારનું હોય છે. તો બાળ મિત્રો, તમારે તમારા દાદી, મમ્મી કે કાકીને કહેવાનું છે કે તેમના પાસે કોઈ રેશમની સાડી કે રેશમનું બીજું કોઈ વસ્ત્ર પડ્યું હોય તો તમને સ્પર્શ કરાવે. તમે કાપડની દુકાને જઈને પણ અલગ અલગ રેશમના સ્પર્શ દ્વારા અનુભવીને અલગ અલગ પ્રકાર ઓળખી શકો છો. બાળ મિત્રો, તમે જાણો છો કે જેવી રીતે કુદરતમાંથી રેશમના કીડા દ્વારા રેશમના તાંતણા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, તેવી રીતે કૃત્રિમ રેશમ પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. હવે આપણને કૃત્રિમ રેશમ અને કુદરતી રેશમ છે તે ખબર કેવી રીતે પડે? તેના માટે તમારે એક નાનકડી કસોટી કરવી પડશે. આપણે શું કરીશું કે રેશમનું થોડો કાપડનો ટુકડો લઈ ચીપિયા વડે પકડી તેને બાળવાનો છે. જો વાળ બળતા હોય એવી સુગંધ આવે તો સમજી લેવાનું એ કુદરતી રેશમ છે. આપણા વાળ શેમાંથી બનેલા છે? હા, પ્રોટીન. અને રેશમ પણ શું છે? સરસ, રેશમ પણ પ્રોટીનનો તાંતણો જ છે, ખરું ને? અને જો કાપડ બળે ત્યારે પ્લાસ્ટિક જેવી સુગંધ આવે અને કાપડ બળતું હોય અને છેડા ગંઠાઈ જાય, રાખ ના બને પણ સ્પર્શ કરતાં ખરબચડું મહેસૂસ થાય, તો એ રેશમ કેવું હશે? કૃત્રિમ રેશમ. આપણે આવી રીતે કુદરતી રેશમ અને કૃત્રિમ રેશમ વચ્ચે તફાવત જાણી શકીએ છીએ. તમે એ જાણો છો કે રેશમનું એક તાંતણું તેટલી જાડાઈ ધરાવતા સ્ટીલના તાંતણાથી મજબૂત હોય છે. તો બાળ મિત્રો, આજનું આપણું ગૃહ કાર્ય, તમારે રેશમના જુદા જુદા કીડાના ચિત્ર ભેગા કરવાના છે. તેમાંથી બનતા રેશમના રેસાની ખાસિયતો પણ લખવાની છે અને રેશમના કીડાના જીવન ચક્રને પણ દોરીને રાખવાનું છે. કરશો ને આટલું સ્વાધ્યાય કાર્ય? તો ફરી મળીશું આવતા એપિસોડમાં. આવજો. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्तव्य पालन से जुड़ी हुई एक इकाई पढ़ेंगे। इकाई की शुरुआत करने से पहले हमारे देश के एक महान व्यक्ति और उन्होंने कर्तव्य पालन के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति। आज हम जो इकाई पढ़ने वाले हैं और उसके साथ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने एक व्याख्यान में कुछ बातें कही थी, वह जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने हैदराबाद में दिए हुए उस व्याख्यान में क्या कहा था। हम सबको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहते हैं, और कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं? उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं और सिर्फ कहते ही रहते हैं। क्या क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। हमेशा यह फरियाद रहती है कि कानून पुराने हो चुके हैं, नगरपालिका कूड़ा नहीं उठाती, रेलवे मजाक बन चुकी है, हमारी विमान सेवाएं दुनिया में सबसे खराब हैं, और इस प्रकार की कई सारी फरियादें हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन क्या इन फरियादों के पीछे मुख्य कारण क्या है और कौन है, यह भी जानना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कहा कि यहां से किसी एक व्यक्ति को
विदेश भेजा जाए और भिन्न भिन्न देशों में जब भारत में रहने वाला व्यक्ति जाता है तब वहां के एयरपोर्ट पर जब वह अपने पैर रखता है वहीं से उस देश के नियमों का पालन करना शुरू करता है। और नियम भी कैसे कैसे हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर में आप सिगरेट के जले हुए टुकड़े सड़कों पर नहीं फेंकते। आप धूम्रपान कर सकते हैं लेकिन सिगरेट के टुकड़े को कहीं पर खुले स्थान में नहीं फेंक सकते। क्या हमारे देश में ऐसा होता है? उन्होंने दूसरा एक नियम बताया कि दुबई में रमजान के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये वहां का एक नियम है। आप टोक्यो की सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? वहां का भी ये कड़ा कानून है। आप नारियल का खोल ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर कूड़ेदानों के अलावा कहीं और नहीं फेंक सकते। अगर फेंकते हैं तो आपको कुछ दंड होता है। यह वहां का नियम है। और इस प्रकार से कई सारे देशों के नियमों की चर्चा भी उन्होंने अपने व्याख्यान में की। और उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या भारतीय नागरिक भारत में ऐसा करेंगे? यानी कि हमारे देश में भी कई प्रकार के कानून बने हुए हैं और हम सब अवगत है। जैसे कि हम बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। कार में बैठते हैं तो हमें सुरक्षा पेटी बांधनी ही चाहिए। इस प्रकार के कई सारे नियम भी बने हुए हैं, लेकिन उसका पालन हमें करना चाहिए और हम नहीं करते हैं तो उसके कारण जो स्थिति पैदा होती है उसका जिम्मेदार कौन है? यह बात उन्होंने इन उदाहरणों के जरिए यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से सफाई की उम्मीद रखते हैं लेकिन हम चारों तरफ कूड़ा फेंकते हैं। हम सब अगर इस प्रकार के नियमों का पालन करें तो हमारा देश भी उसी प्रकार से स्वच्छ बन सकता है। आइए, दूसरा प्रश्न उन्होंने क्या किया कि हम चाहते हैं कि रेलवे साफ सुथरे बाथरूम उपलब्ध कराए, लेकिन हम यह नहीं सीखना चाहते कि बाथरूम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमारी अपेक्षाएं तो हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारे देश में भी उसी प्रकार के कड़े नियम बने, लेकिन ये सारी व्यवस्था अच्छी बनी रहे इसके लिए नियमों का पालन तो हमें ही करना है। और ये जो नियम है उसका पालन अगर हम करना सीख लें तो हम अच्छी तरह से हमारे देश को भी विकसित देश बना सकते हैं, है ना? तो आज हम ऐसी ही एक इकाई जिसका नाम है कथनी और करनी के बारे में यहां पर जानेंगे। इकाई का शीर्षक ही स्वयं स्पष्ट है कि कथनी मतलब बोलना, कहना, और करनी मतलब करना, यानी कि कर्तव्य करना। तो आइए देखते हैं इस इकाई का वीडियो। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है,
एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी कभी ऐसी गलती तो की होगी ना। आपने देखा कि भाई बगीचा बनाने वाला व्यक्ति सूचना के लिए एक बोर्ड तो लगाता है कि भाई फूल तोड़ना मना है, लेकिन खुद तो फूल तोड़ता ही है। यानी कि नियम किसके लिए है? हम सबके लिए है, लेकिन जिसने बगीचा बनाया है उसके लिए तो नियम नहीं है। तो क्या ये सही है? तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, नियम सबके लिए होना चाहिए। ऐसे ही आपने देखा कि एक दुकानदार स्कूटर पार्क करने की जब बात आती है तो ग्राहक से कहता है कि यहाँ नहीं भाई, दुकान के आगे नहीं, आपको तो सामने वाली खुली जगह में अपना स्कूटर पार्क करना है या खड़ा रखना है। लेकिन जब उसका पुत्र आता है और वह बिल्कुल दुकान के आगे सड़क पर ही अपना स्कूटर रखता है और दुकान के अंदर चला जाता है, तो ग्राहक पूछता है कि भाई आपने ऐसा क्यों करने दिया? तो उसने कहा कि ये तो मेरा लड़का है और ये तो मेरी दुकान है, मेरी दुकान के आगे वह कुछ भी कर सकता है। तो क्या ये सही है? आप क्या मानते हैं, हाँ या ना? ना, बहुत अच्छे। आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि नियम सबके लिए एक समान है। उसी प्रकार से आपने देखा कि बस में आप बैठे हैं
है ना। और बस में हमेशा एक सूचन हमें लिखा हुआ देखने को मिलता है कि धूम्रपान निषेध है, यानी कि यहाँ पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते। और ऐसा ही एक यात्री ने किया तो कंडक्टर ने तुरंत उसे मना कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में गया और वहाँ जाकर दोनों ने सिगरेट जला ली। तब यात्री ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा ये तो नियम तुम्हारे लिए है, हम तो हमेशा हर रोज बस में आते जाते रहते हैं, इसलिए ये नियम हमारे लिए नहीं है। तो ये भी गलत है, यानी कि बस में बैठने के बाद जो भी नियम है, जो भी सावधानियां बरतनी है, सबके लिए एक समान ही होनी चाहिए। और दादाजी को तो आपने देखा और आपको मज़ा भी आया होगा। क्या कभी आप अपने दादाजी के साथ इस प्रकार से गए हैं? तो दादाजी भी कतार में खड़ा रहना न पड़े, इसलिए बगैर पहचान वाले व्यक्ति को भी अपना पहचान वाला बताकर बिल थमा देते हैं। तो ये सारी युक्ति प्रयुक्ति है कि जिससे हम ऐसा कहते हैं कि भाई मैं तो सही कर रहा हूं लेकिन आप गलत कर रहे हैं। तो यानी इन सब की कथनी और करनी में अंतर है। हमें यह सीखना है विद्यार्थी मित्रों कि हमें भी अपने जीवन में जो करना है वही कहना है और जो कहना है वही करना है। धन्यवाद।